Dream could be anything. और कोई भी आपका जो है वो ख्वाब हो सकता है। My question would it be something that lasts, or would it be something that will fade away and eventually be destroyed? मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसको आप चाहते हैं, जो आखिरी ख्वाहिश है और उसको आप पूरा करना चाह रहे हैं? Because a lot of times we think, oh, I want a house. It may last 50 years and it's gone. और हो सकता है आप ऐसे कुछ सोचे कि मेरा अपना घर हो, लेकिन उसकी भी एक मुद्दत है, वो खत्म हो जाएगा। Maybe you want a car. It's going to last 10, 15 years and it's gone. और अगर आप गाड़ी हासिल कर भी लेते हैं तो शायद 10-15 साल चलेगी। Maybe you want a good education. Eventually you're going to die. It's no good anymore. और अगर आप ये ख्वाहिश है कि मैं अच्छी तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो जब आप मरते हैं तो उस तालीम का क्या फायदा? But did you know that everybody is hoping for something? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर शख्स कोई ना कोई उम्मीद रखता है, उसके पास कोई ना कोई उम्मीद है। About 10 years ago there was a study done. 10 साल पहले एक खास किस्म की तहकीक और स्टडी हुई, And they wanted to find out what makes people happy. और उन्होंने उस स्टडी में उन्होंने आखिरी जो नतीजा निकाला कि कौन सी चीज है लोगों को खुश कर सकती है। They asked the same question that I just asked you. यही इसी तरह का सवाल उन्होंने लोगों से पूछा जो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। And then they asked, when were you last happy? और फिर उन्होंने पूछा कि आप आखिरी दफा कब खुश हुए थे? And what they discovered was interesting. लेकिन जो कुछ उन्होंने दरियाफ्त किया ये बड़ा दिलचस्प था। They discovered that it didn't matter how much money they made. उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमाते हैं। It didn't matter how much property they had or how big their house was. और इससे भी नहीं फर्क पड़ता कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है। It didn't matter anything except for they asked the question, when were you last happy? और इससे भी नहीं कुछ फर्क पड़ता कि आप आखिरी दफा कब खुश हुए थे। And they discovered that the last time they were happy was when they had just enough to eat and to go to school and no more. और जो उन्होंने आखिरी बार दरियाफ्त की वो ये थी कि आखिरी दफा जब वो खुश हुए थे ये वो वक्त था कि जब उन्होंने उनके पास खाने को कुछ था और उनके पास अच्छी तालीम। They discovered that the more they had, there was no more happiness than when they had less. और उन्होंने ये भी नतीजा निकाला कि कितना ज्यादा पैसा और दुनिया की चीजें उनके पास है, उससे वो खुश नहीं हुए बल्कि नाखुश हुए। And then they discovered that even though they were as happy as they ever were, they were still missing something in their lives. हत्ता कि जब वो बहुत खुश भी थे, उस वक्त भी जिंदगी में वो कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहे थे। And they didn't know how to answer because it wasn't a Christian study, it was a secular study. लेकिन ये एक सेकुलर तालीम थी, ये मसीही तालीम नहीं थी। And what I'm here to tell you tonight is that the thing that was missing was hope in the living Christ. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उस सारे स्नैप में जो एक चीज वो लोग मिस कर रहे थे, वो जिंदा उम्मीद थी जो हमें यीशु मसीह में है। The only way they're ever going to be happy, the only way दुनिया को एक ही चीज खुश कर सकती है कि जिंदा मसीह का जिंदा होना और जिंदा अमीन। And so all around the world, every place I've ever traveled, the people who are truly happy are those who know Jesus and live for Him every day of their life. और मैं पूरी दुनिया में सफर करता हूँ और मैंने ये नतीजा अक्स किया है कि सिर्फ दुनिया में वही लोग खुश हैं जिनका तवक्कुल और भरोसा और उम्मीद यीशु मसीह पर है। So what do we call that? We call that hope in the living Christ. तो हम इसको कहते हैं कि जिंदा यीशु पर उम्मीद रखना। And hope is only found in Jesus, the hope that really matters. और एक ही उम्मीद है और वो उम्मीद हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में हासिल करते हैं। So I know you can't look at it now, but we're going to look at the book of 1 Peter tonight, just real briefly. हम आज पतरस के खत को कुछ डिटेल के साथ जो है वो सीखेंगे। So the first letter of Peter, I want to give you some background. तो पतरस के खत का जो बैकग्राउंड है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Some of you know that Peter's first name was what? Shimon or Simon. और आप में से कुछ लोग जानते हैं कि पतरस का पहला नाम शमौन था।
And then Jesus changed his name to Peter. और फिर यीशु मसीह ने उसका नाम शमौन से बदलकर पतरस रख दिया। And so he changed it to Peter, which means the rock. और पतरस का मतलब है पत्थर। And he was one of the original 12 disciples. और वो उन 12 में से एक अहम शागिर्द था। And Jesus promised that Peter would become a leader among the apostles to help them after he went up to heaven. और यीशु मसीह ने वादा किया कि यीशु मसीह पतरस को उसने 12 में से उनका लीडर मुकर्रर किया। जब वो आसमान पर चला जाएगा तो पतरस उनको लीड करेगा। And that's exactly what happened. और यही फिर हम देखते हैं कि बात हुआ। In the early chapters of the book of Acts, और इमारत के पहले बाब में, इमारत की किताब से पहले बाब में हम देखते हैं Peter was, in chapters 1 through 10, Peter was the leader of the New Testament. इमारत की किताब जब हम पढ़ते हैं तो पहले चैप्टर से लेकर 10 बाब तक हम देखते हैं कि पतरस जो है शागिर्दों को, 12 शागिर्दों को लीड करता हुआ नजर आता है। And then later, after chapter 10, he was called to go and to share Christ not just with the Jews, but also with the non-Jews, the Gentiles. और उसके बाद हम 12वें चैप्टर में देखते हैं कि बाकी लोग भी गए और उन्होंने इंजील को शेयर करना शुरू किया, यहूदियों के साथ भी और बाकी आम के साथ भी। But this letter was written long after the New Testament church was started. और First Peter was written long after. ये जो खत है नए अदनामा में जब कलीसिया शुरू हो चुकी थी तो बहुत देर बाद लिखा गया। And we discover that Peter is in the capital of Rome, or capital of Italy, in Rome, when he's writing this letter. और पतरस जब ये खत लिख रहा था तो वो रोम में, इटली के दारुल-हुकूमत में था। Now, most of the time we think of letters in email these days. और जब हम लेटर कहते हैं तो हमारे ज़हन में एक चीज आती है कि शायद ये ईमेल की तरह एक लेटर है। They didn't have email back in those days. लेकिन उन दिनों में इस तरह के कोई भी प्रिंट या कंप्यूटर वगैरह नहीं थे। In fact, they didn't even have a printing press. और ना ही कोई प्रिंटिंग मशीन थी। So how did they learn about this letter? लेकिन उन्होंने इस खत के मतलब कैसे सीखा? So Peter wrote the letter, and then a person took it from church to church to church, and he stood in front of the church and he read the letter. और जब पतरस ने ये खत लिखा तो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया और हर कलीसिया में वो खत जो था चला गया और लोग उससे सीखते गए और पढ़ते गए उसको। And it tells us in the book of Acts that when they would come and read letters, sometimes it would go all night long. When they would read letters, it would go all night long. और जब कलीसिया में ये खत पढ़ा जाता था तो वो पूरी रात उसको पढ़ते रहते। In fact, the Apostle Paul one night was teaching, he was reading the letter. और पौलुस रसूल एक रात जब मनादी कर रहे थे तो वो खत पढ़ रहे थे और पूरी रात वो मनादी करते थे। He started at noon and he went all the way to midnight. और उसने शाम को शुरू किया और आधी रात से भी ज्यादा का वक्त हो गया। And there was a little boy sitting up in the window. और एक नौजवान बेटा जो था वो खिड़की में बैठा हुआ था। And so he fell asleep when the Apostle Paul was reading the और कलाम सुनते सुनते वो सो गया। and he fell out of the window. और वो खिड़की से गिर गया। And he died right there. और वो उसी जगह पर मर गया। And so the Apostle Paul said, "That's okay, we're going to go," and they brought him back to life. और पौलुस रसूल ने कहा कोई मसला नहीं, हम जाएंगे और उसको दोबारा से जिंदा करेंगे। And after they finished, they ate some food, and guess what they did? और मीठे के बाद उन्होंने खाना किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? They talked some more. The Apostle Paul went back and he talked some more. और खाना खाने के बाद उसके बाद दोबारा उसने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। So do you know what the purpose of that story is? और आप जानते हैं कि इस स्टोरी का मॉरल या नतीजा क्या है? Don't fall asleep in the sermon. इसका मतलब यह है कि जब सरमन हो रहा है तो फिर सोना नहीं, तो गड़बड़ हो सकती है। लोग समझ आ रही बात? लेकिन सोने वाली कोई गड़बड़। You know, I'm joking, but the bottom line is they longed to hear the word that Peter and Paul were writing and telling to them. आप सब ये जान रहे हैं कि मैं मजाक की बात आपसे कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हम ये सीखते हैं कि पूरी रात पौलुस रसूल जो है बनाती कर रहा है।
And so Peter is writing this letter because the church is facing difficulty and harassment and oppression from the people of Rome and the people, the Greeks, the non-believers, and he's writing them to give them hope and to give them encouragement. और पतरस ने क्यों ये खाना लिखा? क्योंकि उस वक्त कलीसिया जो थी मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रही थी, मुख्तलिफ प्रॉब्लम को वो फेस कर रही थी। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कलीसिया थी, रोम के बाहर कलीसिया को मुख्तलिफ इश्यूज और प्रॉब्लम, थियोलॉजी और फिजिकल प्रॉब्लम का सामना था। And so what Peter is trying to tell them is, listen to God's word. I want you to know that God has not forgotten you. No matter how difficult things are, God has not forgotten you. तो पतरस का जो इस लेटर में जो मेन कोर पॉइंट है वो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी भी मुश्किलात में आप घिरे हुए क्यों न हो, खुदावंद जो जिंदा खुदा है आपको कभी नहीं भूलता, वो आपके हमेशा साथ है। In fact, he starts this letter by saying, I, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles all over Asia Minor. I am an apostle of Jesus Christ. हालांकि जब वो शुरू करता है इस बात को पहले पतरस को पहले से अगर हम पढ़े तो लिखा है पतरस की तरफ से तो यीशु मसीह का रसूल है उन मुसाफिरों के नाम जो पेंतस, गलतिया, कपिया, आसिया और बथीनिया में जा रहते हैं। That's where modern day Turkey is right now. और ये जो आज का मौजूदा तुर्की है उनके इसमें नाम है। So even though those names are difficult to understand, that's where Turkey is right now, the modern day Turkey. और इसमें कोई शक नहीं कि ये नाम जिनको प्रोनाउंस करना और लेना मुश्किल है। And he is saying that God the Father in verse 2 is the same, is bringing sanctification of the Spirit for obedience to Jesus Christ. और वो कह रहा है दूसरी आयत में पहला बात और उसकी वर्ष नंबर 2 लिखा है और खुदाबाद के इनमें साबत के मुताबिक रूह के पाक करने से फतना बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगज़ीदा हुए हैं। हम लोगों को मुखातब करके जो ईमान ला चुके हैं उनको ये तसल्ली है। And he is saying that grace and peace be to you in the midst of difficult circumstances. और फिर वो कहता है फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। And so that's what Peter is trying to say. You are experiencing suffering, you are experiencing difficulty, but you can have hope in Jesus. और पतरस हमें ये सिखा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुश्किलात और तरह-तरह की मुसीबतों में घिरे हुए हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारी मुसीबतों से वाकिफ है। And he goes on to talk about, and we're going to expound this in a minute, that in Christ we have a new identity, a new family, and a new hope. और इसके बाद हम ये सीखेंगे कि जब आप मसीह में हैं तो आपके पास एक जिंदा उम्मीद है, आप खुदा के घराने के हिस्सेदार बन गए हैं, आपकी शराकत होगी खुदा की फैमिली के साथ। But he starts by saying, you need hope in Jesus Christ. फिर वो शुरू करता है कि तुम्हें यीशु मसीह में उम्मीद रखने की जरूरत है। And interestingly enough, we're not going to get all the way there, but all through Peter, he is saying, in the difficulties, your hope will actually be strengthened, not lessened. और वो कहता है कि जिंदगी के तमाम तर मसाइल में जितनी भी प्रॉब्लम है तुम्हारी उम्मीद है वो यीशु मसीह पर बढ़ती चली जानी चाहिए, मजबूत होती चली जानी चाहिए, ना कि वो कमजोर होना शुरू हो जाए। So hardship deepens our faith and it makes our hope stronger in Jesus Christ. और जितनी भी मुश्किलात जब आती हैं तो सारी चीजें मिलकर हमारे ईमान को, हमारी उम्मीद को और ज्यादा मजबूत कर देती हैं। So there are three characteristics in verses 3 to 5 of Christian hope. Three characteristics of Christian hope. तीसरी आयत में तीन किस्म के मुख्तलिफ किस्म के किरदार हमें नजर आते हैं जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह पर उम्मीद का क्या मतलब है, तो तीन चीजें हमें नजर आती हैं। वर्ष नंबर 3 में So the Lord implants a living hope in every new believer. When we come to know Jesus Christ as our Lord and Savior, He gives us a new hope.
तो दरअसल जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें एक नई उम्मीद जो है वो देता है। मैं 30 आयत को आपके लिए पढ़ दूं। लिखा है खुदावंद के कलाम में, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और पाप की हम हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। So it says in verse 3 that we are to be born again. तो 30 आयत में लिखा है कि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। What does being born again mean? इसका क्या मतलब है नए सिरे से पैदा होना? Was there another place in the New Testament where that question was asked? क्या यही सवाल नए नामा में किसी दूसरी जगह पर लिखा है? Anybody remember? नए नामा में जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं नए सिरे से पैदा होना। Who was it? Does anybody call out his name? Nicodemus. निकोदेमुस को यीशु मसीह ने यूहन्ना की झूठी बात में कहा कि जरूर है कि तुम नए सिरे से। So he didn't understand the question. He didn't understand how can you be born again? लेकिन निकोदेमुस को एक बात नहीं समझ आई कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की झूठी बात से क्या तेरे नए सिरे तो पैदा होना जरूर है, तो वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? Because you're not actually born physically again, right? लेकिन डेफिनेटली यीशु मसीह को ये नहीं कहते कि तुम्हें जिस्मानी तौर पर जिंदा होने की जरूरत है, But we're born spiritually to new life. लेकिन रूहानी तौर पर हमें नया होने की जरूरत है। And so it's no longer a change, it's actually a brand new life. लेकिन ये चेंज की मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि बिल्कुल नए सिरे से पैदा होना, पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई जिंदगी को शुरू करना। And so our hope is in our salvation in Christ Jesus. तो हमारी जो उम्मीद है वो यीशु मसीह की निजात के ऊपर उसकी बुनियाद है। And so that living hope is found in Jesus Christ. तो यीशु मसीह पर ही जिंदा उम्मीद है। You know, sometimes people look at us as Christians and they think, oh, they have to hope in some kind of mythical or something that's not real. But we know it is real because we've been born again. लेकिन जो बैठ में है वो शायद सोचती हैं कि मसीही जो है शायद इनकी जो उम्मीद है शायद ये सच नहीं है, शायद इनकी कहानियों के ऊपर इतना बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी उम्मीद है वो जिंदा मसीह पर और जिंदा खुदा पर है। So living hope is that which exists right now and carries on. और जो जिंदा उम्मीद है वो यहाँ पर मौजूद है और अभी भी जो ईमानदार है एक ही उम्मीद है ईमानदारों के पास मसीह जिंदा। So the living hope is grounded on the living Word of God. और जो जिंदा उम्मीद है वो हमें खुदा के जिंदा कलाम से नजर आती है। In verse 23 of chapter 1, और पहले ही बाब में उसकी आयत नंबर 23 it says, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding Word of God. क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। So a living hope is one that has life and therefore can give life to us. तो जो जिंदा उम्मीद है इसी में जिंदगी है। And because it is alive, it grows and becomes greater and bigger and more beautiful. क्योंकि ये जिंदगी है तो ये जिंदगी जो है वो बढ़ती रहती है, हमेशा आगे को जाती है, क्योंकि ये जिंदा उम्मीद है। Most of our hopes, they end up dying, right? अगर उम्मीद जिंदा है क्योंकि वो जिंदा है तो जिंदा चीज बढ़ती जाती है, लेकिन बाकी जो दूसरी चीजें होती हैं एक वक्त आता है कि वो खत्म हो जाती है। The passing of time, we know we're never going to get that, and so that dream dies and that hope dies. और जैसे जैसे वक्त गुजरता है अगर आप किसी चीज के लिए ख्वाब रखते हैं तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो ख्वाब भी आस्ता आस्ता मरता जाता है। But in Christ, the passing of time only makes our hope that much stronger because we know that our hope is living and alive. लेकिन जिहड़ी उम्मीद यीशु मसीह दे विच वो टाइम गुजरते नाल नाल ज्यादा जिंदा होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। हालेलुया। Yes, praise. So it's a living hope, and it is a sure hope. We don't have to wonder, is it true or is it not? Because God's Word is real, it is sure, and it is true. एक तो ये जिंदा उम्मीद है और दूसरी ये ग्रांटेड उम्मीद है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये उम्मीद सच है कि नहीं। यही सच है कि जिसका कलाम सच है, ये उम्मीद भी सच है। So our hope doesn't come from things that we hold on to or things that we possess.
like a house or a car. तो साडी उम्मीद जेड़ी है इंसान दे हाथ दियां बनाया हुआ चीज़ां दे उत्तों नहीं है सिर्फ गड्डियां या कार नहीं. Our hope comes because Jesus Christ has made a way for us to have a right relationship with God the Creator. साडी उम्मीद यीशु मसीह के वसीले दे नाल है क्योंकि उन्हें बंदोबस्त कीता है कि वो जिंदा है, तो उन्हें गल्लां तो कलाम सच है, इसलिए साडी उम्मीद पक्की ते नहीं है. And only a believer, only a Christian has this kind of hope, this new life. सिर्फ मसीहियों के पास ही, गौर से सुनिए मेरी बात, जिनके पास बाइबल नहीं, सिर्फ मसीहियों के पास ही ये जिंदा उम्मीद है जो जिंदा रहती है और बढ़ती भी रहती है, बाकी लोगों के पास नहीं. So we know that it is our hope is living, that it is certain, and we finally know that it is eternal. It will never fade. हम ये जानते हैं नंबर 1 कि हमारी उम्मीद है वो जिंदा है, नंबर 2 हमारी उम्मीद है वो गारंटेड है, It is eternal. Never. और ये हमेशा के लिए है, ये ना खत्म होने वाली और ये हमेशा रहेगी. So what does it say in verse 4? To obtain an inheritance which is imperishable, undefiled, and will never fade away. और चौथी आयत में लिखा है ताकि एक गैर फानी और बेकार और लाजवाब मिरास को हासिल करें. So what does imperishable mean? That means something that cannot be destroyed. लाजवाब मिरास का क्या मतलब है? ना खत्म होने. Nobody can take it away from us. Nobody can move it away from us. It cannot be destroyed because it is imperishable. यानी ऐसी मिरास यानी कोई ताजे को खो नहीं सकता और ना वो चोरी हो सकती है, क्योंकि वो लाजवाब है. Sometimes people talk about, well, can you lose your salvation? और कभी-कभी शायद लोग सवाल करके शायद आप अपनी निजात खो देंगे. And it tells us in another part of the New Testament that neither height nor depth nor width can separate us from God's love. और रोमियो के खत में 8 बार में लिखा है कोई भी चीज ना तलवार ना भूख कोई चीज सामने मसीह को जुदा नहीं कर सकती. हालेलुया. कोई भी चीज दुनिया की आफतें ना भूख ना मौत हमें मसीह से जुदा कर सकती. And it can never be taken away. It is imperishable. It will never be destroyed. We can trust in ये जो God. उम्मीद है हमें यीशु मसीह पर, कोई भी इसको आपसे छीन नहीं सकता क्योंकि ये गैर फानी है और बेदाग है और लाजवाब निराश है. But even beyond that, it's undefiled. It's not corrupted. There's no sin in it. There's nothing wrong with it. It's pure. और उसके पीछे जब हम जाते हैं तो ये जो उम्मीद है इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारे मसीह के ऊपर गुनाह साबित नहीं कर सकता क्योंकि वो बेदाग है, बड़ा है. So often, the hope that we place in things, it all fades away and it is corrupted, and yet that is not the case with the hope that we have in Christ. दुनिया की जो उम्मीदें हम रखते हैं, दुनिया पर, पैसे पर, दौलत पर, हर एक चीज पर, उनके अंदर मिलावट है, करप्शन है और वो उम्मीदें टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लोग वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं. You know, since I've been in Pakistan, a lot of people say, why do you leave one of the wealthiest countries in the world and come to Pakistan? और जब से मैं पाकिस्तान में लोग अक्सर मैंने एक सवाल पूछते हैं कि भाई जी तुसी कहता अच्छा ते अमीर ते खूबसूरत मुल्क जिथे जाने लोग मरे जा रहे हैं वो मुल्क छोड़कर पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं? इनका उन्होंने गलत समझ आ रहा है. ये सवाल लोग पूछते होंगे डेफिनेटली. In fact, many times the police, they say, why do you come to Pakistan? So many people in Pakistan want to go to America. और अक्सर जब मुझे पुलिस वाले रोकते हैं तो मैं जब बताता हूँ कि मैं अमेरिकन हूँ तो वो कहते हैं या तो कहते हो फिर इंडिया ऐसे तो लोग उसे जाना चाह रहे हैं. Because everybody wants to go there so they can make a lot of money. क्योंकि सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पैसा है. Everybody knows this, right? Everybody knows. और सबको ज़्यादा डॉलर यूरो ये चाहिए. And they think if I just have a little more of this, I'm going to be happy. और हर शख्स ये सोचता है कि अगर मेरे पास इससे कुछ ज़्यादा पैसा हो तो ये शायद मुझे ज़्यादा खुशी मिले. If I have a little more of this, my children will be happy. और अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा हो तो शायद मेरी आने वाली नस्लें ज़्यादा खुश हो जाएंगी. And if I have a little more of this, everybody's going to be happy. और अगर इससे भी कुछ ज़्यादा हो तो शायद महल्ले वाले
मैं कोशिश करता। But did you know that one of the wealthiest countries in the world, there are more people who are depressed and sad and commit suicide and struggle just to have any hope whatsoever. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सुनिए मेरी बात, कि दुनिया का जो अमीर तरीन मुल्क है, उसके लोग जो है, वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, ज्यादा खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके पास कोई अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, हालांकि हमारे ख्याल के मुताबिक वो बहुत खुश है, लेकिन ये बात गलत है। And the reason is because this world will never give you the answers that only God can give you. क्योंकि इस दुनिया में अगर जापान को आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड वहां पर होती है। तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में रहते हुए पैसा और दुनिया की चीजें और ये दुनिया पर नहीं रखने वाली जो चीजें हैं या दुनिया पे अगर आप नहीं रखते तो ये चंद रोजा है, ये खत्म हो जाएगी। Because the inheritance that you find in this world is already dirty and defiled because it doesn't come from God. क्योंकि जो दुनिया की चीजें हैं ये खुदा से नहीं है, लेकिन हमारी जो उम्मीद है वो जिंदा खुदा से है, वो ना खत्म होने वाली उम्मीद है, इसलिए हम कभी भी मायूस नहीं होते। So a living hope depends on God's work in Christ, and that's the only way that is going to give us something that will last. तो जो जिंदा उम्मीद है वो जिंदा कलाम के अंदर हमें नजर आती है, जो कभी खत्म नहीं होती। And then the final thing, the final picture of hope I want to give us. और एक आखिरी तस्वीर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस खत It's that a hope that perseveres, that endures in the midst of suffering. ये जिंदा अबीज है, ये लाजवाब है, और ये हमें कोई कुर्बानी खुद देकर नहीं, बल्कि किसी ने कुर्बानी दी है और हमें ये हासिल और नसीब हुई है। आमीन। It doesn't mean everything's going to go great. Our lives don't, just because we have hope in Christ doesn't mean everything's going to be perfect. और अगर हमारी उम्मीद यीशु मसीह पर है, तो ऐसा मत सोचें कि जमीन पर रहते हुए आपकी जिंदगी शानदार होगी। But it means that again, we're not looking here, but we're looking to eternity. लेकिन आपको ये याद रखना है कि हम इस दुनिया में सारी चीजें हासिल ना करने की कोशिश करें, न सिर्फ इसी जमीन को देखते रहें, बल्कि हमने आसमान की तरफ देखना है, जिसके लिए उसने वादा किया है कि वो लाजवाब मिरास आसमान पर आपके लिए मौजूद है। Because God is there for us and He protects us and He gives us the endurance that we need. क्योंकि आसमान पर आपके साथ खड़ा होगा और वहाँ की जो चीजें हैं वो गैर फानी हैं और वो जो मिरास है वो गैर फानी है और आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। So in verse 5 it says this of chapter 1, who by God's power are being guarded through faith for salvation ready to be revealed in the last time. पहला बाब 5 आयत, पहला बाब 5 आयत में लिखा है, वो तुम्हारे वास्ते खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़हर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो आसमान पर महफूज है। आमीन। जोरदार तालियां दें इस वादे को समझने के लिए। आसमान पर मौजूद है, महफूज है। So enduring hope that does not endure, that does not persevere, that does not keep on until the end is not real hope. Hope that does not last is not hope. और जो ऐसी उम्मीद जो मर जाती है वो मसीह पर नहीं हो सकती, लेकिन जो मसीह पर उम्मीद है वो हमेशा जिंदा रहेगी। So our challenge is to take the hope and let it be living in every sense of the world, in our own, in every sense of the word, in our own lives. और हमारे लिए ये जरूरी है कि इस जिंदा उम्मीद को, इस यकीन को, इस तसल्ली को अपने अंदर रखें ताकि दुनिया में रहते हुए जब हम दुखों और मुसीबतों का मुकाबला करें तो हमें वो जिंदा उम्मीद तकवीत देती रहे। It should affect and it should change everything about our lives when we have hope in Jesus Christ. जब आपकी उम्मीद जिंदा रहेगी और आप
मौजूद है तो आपकी जिंदगी मौजूदा जो जिंदगी है ज़मीन पर रहते हुए ये तब्दील हो जाएगी। So I want to answer two questions real quick. Why should we hold on to hope? और दो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 है कि क्यों हम उसी पर उम्मीद रखें? Because God commanded it. तो फिर खुदा ने ये हुक्म दिया है। In the psalmist it says, "O Israel, hope in the Lord from this time and forever." और ज़बूर के किताब में लिखा है कि इस्राएल ताकि उम्मीद होड़ तो लेके हमेशा तक सिर्फ और सिर्फ यहोवा पाक खुदावंद पर होनी चाहिए। And in 1 Timothy it says, "Set your hopes on the uncertainty of riches, not on uncertainty of riches, but set your hopes on God." और तीमुथियुस के खान पर लिखा है कि जो दुनिया के हालात है आपने इन चीजों पर उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन सिर्फ जो हमेशा से शुरू से खुदावंद है अल्फा और ओमेगा है उसी पर अपनी उम्मीद रखनी। So why should we hold on to hope? Because God has commanded it. तो क्यों हमें उम्मीद पर हमने कायम रहना है? नंबर 1 उसका जवाब है क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया है कि उसी उम्मीद पे कायम रहना। Because the word of God is living and it tells us in God's word. क्योंकि खुदा का कलाम जो जिंदा है और वही हमें ये बात सिखाता है कि हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। It says in Psalm 119, "I have hoped in your word." और खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरी उम्मीद तेरे कलाम के ऊपर है। ज़बूर 119। And so why do we hope? Because God commanded it and because the word tells us to. तो क्यों हम खुदा के सुसी पर उम्मीद रखें? सोचने की देर के लिए। क्योंकि खुदा ने ये हुक्म दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा पर उम्मीद रखें। नंबर 1 इसका जवाब है। And so the second question is, what happens when we hold on to hope? और दूसरा सवाल है कि जब हम उम्मीद पर कायम रहते हैं तो फिर क्या होता है? Hope encourages us as believers. ईमानदार होते हुए उम्मीद जो है जिंदा उम्मीद जो है हमें हौसला और तक़वियत देती रहती है। In Hebrews chapter 3 it says, "Christ is faithful over God's house, and we are in his house if we hold fast to him and him alone." If we hold fast to God and God alone. इब्रानियों का खत देखें उसका 3 बाब वर्ष और 6 आयत में लिखा है इब्रानियों 3:6 लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं बशर्ते कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। So what is the result of hope? He gives us the assurance of our faith in him. तो जिंदा उम्मीद रखने का नतीजा क्या हुआ? वो गारंटी है कि फिर हम खुदा के साथ रहेंगे। We're not going to lose hope because we hope in the living Christ. और हमने अपनी उम्मीद कभी भी नहीं खोएंगे क्योंकि हमारी उम्मीद है वो जिंदा खुदा पर है। आमीन। The second thing I want us to see why we should hold on is it leads us to godly living. और दूसरी बात है कि क्यों हम जिंदा उम्मीद पर यकीन रखें क्योंकि यही उम्मीद हमें खुदा के रास्ते पर और ताबेदारी के लिए सिखाती है मजबूत करती है। It helps us when we hope in God to help us to live according to his ways and to his word. और जो लोग असी उम्मीद रखते हैं साडी उम्मीद साडे अंदर जिंदा होती है तो फिर असी ज्यादा अच्छे तरीके से नाल जिंदा खुदा की ताबेदारी कर सकते हैं। आमीन। And then the third reason is that hope encourages us to share the hope that is in us. और तीसरी बात मुझे नहीं पता कितने लोग फिट कर पा रहे हैं, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये थोड़ी सी मुश्किल है। Yeah. So the hope that we have in us encourages us to share. और तीसरी बात है जब हमारी उम्मीद जिंदा है और जिंदा खुदावंद पर है तो फिर असी दिलेरी दे नाल दूसरे ने भी दस दे दे पे राह हाकते जिंदगी सिर्फ यीशु कोल उस तो अलावा पर कोई नहीं। आमीन। So what is the result of hope? तो नतीजा क्या निकला जब आप जिंदा खुदावंद पर जिंदा उम्मीद रखते हैं? It encourages us in our faith. ये हमारे ईमान को तक़वियत देती है। It leads us to live God's ये way. हमें गाइड करती है कि हमें खुदा के साथ किस तरह फर्माबरदारी से चलना है। It encourages
share the hope that is there. और ये हमें दिलेरी देती है कि हम दूसरों के साथ उस जिंदा उम्मीद को शेयर करें. And finally, it enables us to face death with confidence. It enables us to face our death with confidence because of our और hope. जो आखिरी बात है, और सुनिए, जब आपकी उम्मीद जिंदा है, जब आपको गारंटी है, जब आप ईमान रखते हैं कि आसमान पर वाज़ में मिरास मौजूद है, तो फिर असी मरने तो नहीं डरते. आमीन. आमीन. फिर हमें इत्मीनान होता है कि चलो इस जिस्म से निकल के हम असली दुनिया में दाखिल होते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. हालेलुया. So, in the Old Testament, in Job chapter 19, और पुराने नियम में अय्यूब के सीखे में उसके बाब नंबर 19 में हम देखते हैं. and it says, Job chapter 19, verse 25, "For I know that my Redeemer lives, मैं जानता हूँ, अय्यूब कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है. and at the last he will stand upon the earth, और आखिर में वो ज़मीन पर खड़ा होगा. and after my flesh has been destroyed, और मेरी खाल की इस तरह खत्म होने के बावजूद भी yet I will see God." मैं अपनी आंखों से खुदावंद को देखूंगा. That is the hope that enables us to die and to die well, because we believe in Jesus Christ, who is alive now and through the Holy Spirit gives us life. And at the end day, when everything else falls away, we will see God. और यही एक ऐसी और जिंदा उम्मीद है जो ना हमें मरने का खौफ दिलाती है, और हम जानते हैं कि दुनिया भले सारी खत्म हो जाए, एक दिन हम खुदावंद के साथ होंगे और आसमान पर होंगे. और कैसे किस बात के बता दो, खुदा अपने लोगों के तमाम आंसू पूछ देगा और उसका खैमा उसके लोगों के दरमियान होगा. So why do we hold on to hope? We hold on to hope because it makes a difference in everyday life, but we also hold on to hope because it makes a difference for all of eternity. दो चीजें हैं जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीद जिंदा, और उस पर हमने क्या रखते हैं. एक चीज तो जमीन पर रहते हुए हमारी जिंदगी बेहतर बन जाती है, और दूसरी बात आखिर हमारी समझ जाती है, आखिर में हम खुदा के साथ हों. इसलिए हमने जिंदा उम्मीद पर कायम रहना. Oftentimes people will say, "So why do you believe what you believe? Why do you believe in Jesus Christ?" और अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं कि तुम यीशु मसीह पर क्यों ईमान रखते हो, उम्मीद रखते हो? वजह क्या है? Because my hope isn't like the world. क्योंकि मेरी उम्मीद है वो दुनियादारों की उम्मीद की तरह नहीं है. Because the hope that we have is kind of wishful thinking. I wish that it would happen, but I और ना ही don't. मेरी उम्मीद ऐसी है कि मैंने अभी कोई ख्वाहिश की पूरी हो गई तो ठीक नहीं हुई तो कोई मसला नहीं. But the hope I have is in the living Jesus. लेकिन मेरी जो उम्मीद है वो यीशु मसीह पर है जो जिंदा है. And the hope that I have is in the living Word. और जो उम्मीद है वो खुदावंद के जिंदा कलाम में है. And the hope that I have promises me that when I die, I know exactly where I will be for not only that day, but for all और eternity. यही उम्मीद हमें ये सिखाती है खुदा के कलाम के मुताबिक कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे ये पता है कि मैं कहाँ पर रहूंगा. So the question is, do you have that hope today? तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके पास यही उम्मीद है जिसकी हम बात कर रहे हैं? Are you holding on to the hope that can only be found in Jesus Christ? क्या आपके पास वो उम्मीद है जो सिर्फ हमें यीशु मसीह पर मान रखने से ही मिलती है? Or are you wishing for something better in this world that perishes and will not last? क्या आपकी उम्मीद भी दुनियादारों की तरह है? क्या आपकी उम्मीद सारी इस दुनिया पर ही तो और दुनिया में भी आपकी खुशी के बदलाशी है? I pray with all of my heart that you will be able to stand like Job did on the last day. I will see God. मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप अय्यूब की तरह उस कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होकर कह सकें कि इस खाल के खत्म हो जाने के बावजूद भी मैं अपनी आंखों से जिंदा खुदा को देखूंगा. Let's pray together. हम दुआ करें, आंखें बंद करें. Father, I know this is a hard thing for us to grapple with. खुदा बाप हम जानते हैं कि इसमें कुछ शक नहीं कि ये चीजें समझना और सीखना मुश्किल